Dear students, we are going to start important chapter, the process of communication and revision. So let's start with the chapter number 2, process of communication and factors and features or elements of communications. So you all know communication, the sharing of ideas in common. Now we will discuss its process and somehow we will also discuss the barriers in the process in the communication, and that is the main topic, process of communication, its elements and features. We will discuss whole chain one by one in detail. Let us start with the process of communication. Now you all process is very simple, but we need the consistency. Now, communication and process. Let's what is communication first? As I told you, communication is the art of transmitting information, ideas, and attitude from one person to another. Communication is also the process of meaningful interaction among human beings. You all know language is a mean of communication. When we communicate, we transmit ideas, information, attitude from one person to another person. And it's a process of meaningful interaction. When we convey our ideas, when we convey our thought, then we will also receive the feedback or response, and we will think that communication is successful. We think that our communication is successful because of the meaningful interaction among human beings, and we usually communicate anywhere with our parents, with the students, or with other people. So the basic task of communication is we receive feedback and proper feedback of the communication, and we think that our communication is successful. Now, how this process goes, there is a consistency in the process, and let's see. Personal process. First, we will discuss the features, and before starting feature, let's see now occur between people. The communication occur between people, and involving changes in the behavior and means to influence others. That is the communication means to influence others. Expression of thought and emotion through words. That is the dressing your thought and ideas. That is the tool required in proper communication process. And communication occurs between people, and in all changes in behavior, influence other. We usually influence others with our communications, and we dress or decorate our thought and the words, and use meaningful language, tool for controlling and motivating people. Communication play a vital role as a tool, like to motivate people, to control people, to encourage people in any field. And it is a social and emotional process. A social and emotional, also a psychological process, social, emotional, and psychological process. So this is the basic communication. These are the basic communication tools, and we usually use why we use communication skills, why communication is necessary, as we have discussed. Now, before starting process of communication, first we will discuss briefly these features, and later on we will discuss the process of communication and features and elements in detail. Communication is a two-way purpose, and two-way process, and information sharing and understanding purpose. We use communication, and verbal and non-verbal communication. We use this tool, written, oral, and circular flow for the circular purpose, some kind of announcement, and we use this tool. And goal-oriented communication is goal-oriented because we achieve our target goal while following the process, and continuous process, and pervasive activity. So these are the features of communication. For better understanding and good feedback, we usually use these features for achieving our goal-oriented target. And these features are very important in the process. And now let's start. The process, the main topic, the communication process. Understand?
This is the main topic of our discussion. Now, see, we have discussed the communication. Communication is the sharing of ideas in common. You all know we communicate with different people, and we usually talk with our parents, the students, and for business purpose we usually communicate. So language is a mean of communication, and communication is very important in your personal life as well as in order to build up your business career. Now the communication process, sender encoding message. Now the sender is a person to encode message and message channels, and there is a disturbance, noise, barriers. There are so many barriers in the communication process. Message decoding, and later on, after decoding the message, what sender conveys after decoding the idea received by the receiver through proper channel, and when the receiver gives feedback. So that is a complete process. After giving feedback from the receiver, when he usually receives the idea from the sender, idea there means thought or like any sort of email or message, written, verbal. It doesn't mean that it is only verbal. It might be non-verbal, and only thought, feelings, idea, message, email. That is the center, message. After decoding, when the receiver usually receive, now कितने परसेंट वो समझता है, उसका रिस्पॉन्स देता है. Usually some sort of transmission lost while sender while conveying the thought. Usually when the idea the receiver जो thought जो process होता है उसमें some sort of जो data है वो lost हो जाता है, और 80% sometime feedback मिलता है, sometime 90, sometimes 70, depends upon the background of the receiver and sender. इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं पूरे प्रोसेस को, और इसमें जो जो रुकावटें होती हैं उसको भी हम पढ़ लेंगे डिटेल्स में. तो स्टार्ट करते हैं पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस को. नाउ सी, फर्स्ट मैसेज. Message is a key idea that the sender wants to communicate. Message is a key idea. Message is a thought, feelings. It is a sign that elicit the response of the recipient, and communication process begins with the deciding about message to be conveyed. This process starts with the what sort of message we want to convey, what sort of idea we want to convey, or what sort of thought or feeling we want to convey. You all know that in our mind there are so many thought and ideas revolved around, but we want to filter it. Okay, when usually we filter it, the important task and important ideas that we want to convey and that are meaningful, as we have discussed in the listening and hearing, the important ideas that you listen and important words you listen, and later on you got the meaning of that ideas, and then you want to convey after filtering or after proofreading. So first, it is the thought, it is the idea. We have to begin with decision that what sort of message we want to convey. It must be ensured that the main object of a message is clear. Whatsoever your thought, mean a message or email or any sort of text, but it must be clear and understandable. अंडरस्टैंड बिल्कुल क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो मैसेज, ताकि रिसीवर का फीडबैक इसका जो है प्रॉपर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमें जो है उसका फीडबैक मिल पाए. नाउ later on, after component and features, let's see discuss sender encoder. Now thought encoding. What is encoding? That is the we will discuss one by one in detail. Sender encoder is the person who sends the message. Understand? Sender encoder is the person who sends the message. A sender may use a symbol, words, a graphic or visual aid to convey the message and produce the required response. सेंडर जो होता है वो अपने ग्राफिक, अपने विजुअल एड, अपने वर्ड्स, अपने इस तरह से अपने थॉट को डेकोरेट करता है ताकि रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स उसको मिल सके. फॉर इंस्टेंस, ट्रेनिंग मैनेजर कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर न्यू बैच ऑफ एम्प्लॉय. एक ट्रेनिंग मैनेजर है, वो जो है अपने न्यू एम्प्लॉय के लिए जो है एक ट्रेनिंग सेशन रखता है. सेंटर में भी एन इंडिविजुअल, group of an organization, the view, the background, and approach, skills, competency, and knowledge center have the great impact on the message.
ना जो ट्रेनिंग रखता है सेंटर, जो जो मैसेज उसका ट्रेनिंग के थ्रू जो है उनको जो थॉट या जो चीज़ें वो ट्रेन करना चाहता है, ही मस्ट नो द बैकग्राउंड एंड अप्रोच स्किल कॉम्पिटेंसी एंड नॉलेज ऑफ द फेलोज एंड उनको सारी चीज़ें बैकग्राउंड नॉलेज और उसके जो है उनकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, और सेंटर में भी एन इंडिविजुअल एक आदमी हो बट या ग्रुप हो ऑर्गेनाइजेशन का, बट उनको पूरी बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो मैसेज जो जो वो लिखना समझाना चाहता है, जो ये हम अमूमन लोगों को यही जैसे जो है जो थॉट क्लियरली अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो लोग उनको सही से समझ भी पाते हैं। तो दैट इज द मेन टास्क ऑफ द ट्रेनिंग मैनेजर एज वेल, हाउ टू ट्रेन अदर दैट किस तरीके से जो है ये चीज़ जो है जो सेंटर इनकोडिंग है, जो मैसेज है जो जिसका रिक्वायर्ड रिस्पांस मिले और किस तरीके से जो है लोगों को गाइड किया जाए ना। मैसेज इनकोडिंग जो होती है किस तरीके से जो है इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनकोडिंग इज द प्रोसेस, बेसिकली इनकोडिंग है क्या? एनकोडिंग इज द प्रोसेस वेयर द इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट गेट ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म टू बी सेंट एंड डिकोडेड बाय द रिसीवर। एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपके पास हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज़ हैं, हंड्रेड ऑफ थॉट हैं, बट उनमें से कौन से थॉट, कौन से आइडियाज़, कौन सी मेल आप कन्वे करना चाहते हो, तो उसको आप ट्रांसफर्ड करते हो और लेटर ऑन जो रिसीवर होता है उसको डिकोड करता है और समझने की कोशिश करता है। नाउ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आफ्टर एनकोडिंग? आफ्टर एनकोडिंग आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो चीज़ जो रिस्पॉन्स हम चाह रहे हैं उसी तरह का मिले। द मैसेज मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ओपिनियन, एडवाइस, सजेशन, क्वेश्चन, आंसर, मटीरियल। इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट मैसेज रिसीव्ड बी आइडेंटिकल टू द मैसेज सेंट। जो मैसेज हम रिसीव करते हैं और जो सेंड करते हैं इसमें आइडेंटिकल दोनों में आइडेंटिकल दोनों होने चाहिए। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ सेंडर और रिसीवर आर स्किलफुल इन कम्युनिकेशन। इफ द बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर एक्सपर्ट इन स्किलफुल इन कम्युनिकेशन, तो मैसेज रिसीव और मैसेज सेंड में एक किस्म की जो है आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल होंगे। इनकोडिंग इज ड्रेसिंग योर थॉट विद मीनिंगफुल लैंग्वेज। इनकोडिंग में जो है आपकी राइटिंग, स्पीकिंग एंड अदर कम्युनिकेशन मीन हो सकती है। So basically, encoding क्या है? Encoding is dressing your words, dressing your thought with the meaningful language. अपने अल्फाज को इस तरीके से मीनिंगफुल वे में लिखना ताकि उसका जो पूरा रिस्पॉन्स हमें जो है मिले और हमें जो है रिसीवर से जो रिस्पॉन्स चाहते हैं वो मिले। Channels. Now, after message encoding, channels are the way you convey your message. These channels include verbal, such as telephone and face-to-face communication, as well as non-verbal, such as email and text messaging. इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, बिकॉज यू मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट चैनल्स। नाउ सी एज आई टोल्ड यू, चैनल्स में वर्बल चैनल, टेलीफोन, फेस टू फेस कन्वर्जेशन, एज वेल एज जैसे टेलीफोन कॉल से या अमूमन वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, द वर्बल एज वेल नॉन वर्बल जो है जिसमें ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग। ईच इंडिविजुअल चैनल हैज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यू ऑल नो, जब हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स, उस चैनल्स में वीकनेस भी होती है, बिकॉज यू ऑल नो डिस्टर्बेंस हो जाती है समटाइम्स जो है, डिसकनेक्शन और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रॉपरली हमारी जो है प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। फॉर इंस्टेंस, रिटन मीडियम इज chosen when a message has to be conveyed to a small group of people. रिटन मीडियम जो होता है जिसमें हम जो है कुछ लोगों को, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को जो है मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। व्हाइल एन ओरल मीडियम इज चोजन व्हेन स्पॉन्टेनियस फीडबैक इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट एंड अंडरस्टैंडिंग आर क्लियर देन एंड देयर। अब ये जो लार्ज पीपल, वी कैन से दैट ओरल कम्युनिकेशन हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमें स्पॉन्टेनियस फीडबैक रिक्वायर्ड होती है और इट्स नॉट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। देयर आर सो मेनी पीपल, if we want to convey message to different peoples and you know ज़्यादा जो है जैसे लोग उसमें जिसको हम कोई मैसेज वगैरह कन्वे करना चाहते हैं तो उसमें हम जो ये पर्पज़ ये मेथड यूज़ करते हैं। बट उसमें अमूमन क्या होता है, बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, हम उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जो चैनल्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट चैनल्स होते हैं, आप देखें एडवर्टाइजमेंट, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, हम उन बहुत सारे चैनल्स हैं। हम अपने मैसेजेस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट, अपने पर्सनल और बिजनेस करियर्स की कन्वे कर सकते हैं, बट उसमें समहाउ रुकावटें भी होती हैं, डिस्टर्बेंस भी होती हैं, और उसको फिर इजीली हम जो है सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। सो जी, डिफरेंट चैनल्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट रुकावटें, हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं, तो उसको हम जो है ओवरकम भी कर सकते हैं। नाउ सी लेटर ऑन, नेक्स्ट, मीडियम ट्रांसमीटर. Medium of the communication include letter, report, mailgram, telegram, telephone, chart, picture and other mechanical device. ये सारे mediums जो है important है. Now see, कौन कौन से mediums हैं? Letter, report, mailgram, telephone, chart, picture and other mechanical device. अब ये जो मीडियम्स हैं जिसमें हमने पढ़ा कि रिपोर्ट्स, टेलीफोन, चार्ट, पिक्चर्स, ये मैकेनिकल जो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम लोगों को अपने आइडियाज़ जो हैं कन्वे करते हैं, जिसमें हम अमूमन देखा कि जैसे जो लेटर लिखते हैं या मेल वगैरह करते हैं, टेलीफोन कॉल कर लेते हैं, और ये जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं। अब जैसे देखें, एक्सेप्ट दिस पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, मैसेज, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सब क्या है? मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है। मीडियम ट्रांसमीटर है, हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, हमारे थॉट को, हमारे मैसेज को, जिसमें मैसेज हमारा जो है कोई रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, ईमेल हो सकती है, उसको कहने का मतलब ये जो मीडियम्स हैं, टीवी के थ्रू, अखबार के थ्रू, ईमेल के थ्रू, हम जो है फ़ोन कॉल के थ्रू हम लोगों को समझाते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। अंडरस्टैंड? जो जो हमें जो है रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ जिससे हमें बात करनी होती है, तो ये जो है जब पोस्ट लेटर हम भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजते हैं, ये मीडियम्स हैं। Now there are noise and barriers. There are barriers in communication. रुकावटें होती हैं, hindrances होती हैं. The belong in the flow of communication for noise and barriers. These include disturbance, शोर शराबा हो गया, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई दखल अंदाजी, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, पुअर लैंग्वेज है, समझ में नहीं आ रही बात, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्कनेक्शन या फॉल्टी ट्रांसलेशन इन अटेंशन, तवज्जो नहीं है, सेंडर और रिसीवर जो है एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, तो ये जो है तवज्जो कहीं और है, टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, जब बात सुनी हुई है उस पर तवज्जो नहीं देना चाह रहे, एक दूसरे के बैकग्राउंड, एक दूसरे की पर्सनालिटी, और ये जो है सब डिफरेंसेस होना, डिस्टर्बेंस होना, ये सब बैरियर्स हैं। पुअर लैंग्वेज, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये जो डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज एंड बैरियर्स होते हैं, जिसकी दीज आर द हिंड्रेंसेस, these are the obstacles in the flows of communication. Now see, after hindrances we will have to discuss one more point. ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे, मीडियम्स पढ़ रहे थे, इसमें देखें वन वे, टू वे, कोलाबरेटिव, अब फैक्स, मेमोज, ईमेल, वॉइस मेल, लेटर्स, ये वन वे कम्युनिकेशन, एंड टू वे अमूमन जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है, अंडरस्टैंड, टेलीफोन कॉल्स, एंड कोलाबरेटिव जिसमें अमूमन टीम मीटिंग, कंसल्टिंग, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग या ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, पूरे ग्रुप्स में किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंसेस रखी जाती हैं, कंसल्टेशन की जाती है, मतलब आपस में सलाह मशवरा करना, टीम मीटिंग रखना और डिसाइड करना, तो ये भी जो है वन वे, टू वे कोलैबोरेटिव एक प्रोसेस होता है, अंडरस्टैंड, फॉर द बेटर कम्युनिकेशन पर्पज, एंड ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ communication. Later on, as we discuss all these things, two-way is a phone call in person as well after using computer, different call session. So these process, one-way, two-way collaborative process is very useful in the communication purpose. Later on, let's see, after encoding and after reading barriers, we have to discuss the decoding. Decoding, after encoding message, now when the message received, what is decoding then?
After receiving message, what is decoding? Decoding is on the receiving end of the communication. This stage is just as important as encoding. Means as encoding, this stage is as important as encoding. Communication can go down at this stage if the receiver is not practicing active listening skill. If they do not possess enough information to accurately decode the message. अगर रिसीवर को इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है हाउ टू डिकोड मैसेज, उनके पास उस तरह की इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, तो ये जो है आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है एक्टिव लिसनिंग की, देन द कम्युनिकेशन में बी फेलियर। आपका जो सेंडर का जो रिस्पॉन्स वो चाहता है तो उस तरीके से उसको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज द मैसेज इज नॉट प्रॉपरली डिकोड बाय द रिसीवर। द मैसेज इज नॉट प्रॉपरली डिकोडेड बाय द रिसीवर। तो ये जो है एक प्रॉब्लम होगी। तो इसमें ये बहुत लाजमी है कि जो जिस तरीके से सेंडर और रिसीवर, सेंडर इनकोडिंग एंड रिसीवर डिकोडिंग, इस तरीके से सेम आइडेंटिफिकेशन और सेम आइडेंटिकल होनी चाहिए दोनों की, बैकग्राउंड नॉलेज स्किल्स कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीज़ें दोनों में होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर में, ताकि प्रॉपर फीडबैक मिल सके। तो दैट डिकोडिंग प्रोसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज इनकोडिंग। अंडरस्टैंड? जैसे हमने इनकोडिंग पढ़ा था, ड्रेसिंग योर थॉट इन अ मीनिंगफुल लैंग्वेज, एंड ड्रेसिंग योर थॉट विद अ मीनिंगफुल लैंग्वेज। इन अ सिमिलर वे डिकोड करना मैसेज को, उसको जो है पढ़ के समझ लेना, डिकोडिंग इज दैट। अंडरस्टैंड? नाउ सी, we will discuss that how receiver received message. Receiver is the person for whom the message is intended or aimed. The degree to which the decoder understands the message is dependent upon the various factors such as knowledge of recipient, their responsiveness to the message, and the reliance of the encoder or decoder. अब ये डिपेंड करता है डिकोडर के ऊपर कि कितना जो है किस तरीके से वो सीरियस रिस्पॉन्सिबल है एंड रिस्पॉन्स करता है, और हाउ दे अंडरस्टैंड वन अनदर। this is the degree of importance between sender and receiver and their background and their proper feedback of the communication. So this process is very important. Now idea received. Now after receiving ideas, let's see. Idea received is the process of decoding by the receiver. When the message conveyed or sent by the sender and idea received by the receiver, if there is a differences between sender receiver background, message sent and received will be different. If there is a difference, that is a very important point, please note it down. अगर रिसीवर और सेंडर के बैकग्राउंड में डिफरेंस है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक पढ़ा लिखा है, एक लिटरेट है, देन देयर विल बी अ डिवीजन, और मैसेज जो होगा एक दूसरे का रिस्पांस नहीं मिल पाएगा सही से, और बैरियर्स होगा या डिफेक्ट होगा, समझ नहीं आएगा, और प्रॉपर कम्युनिकेशन या जो हमारा टास्क है या हमारा गोल है, जिस वजह से हम ये मैसेज कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे और प्रॉपर उसका हमें फीडबैक नहीं मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंडर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द रिसीवर, दोनों का बैकग्राउंड, दोनों की नॉलेज, दोनों की कॉम्पिटेंसी, दोनों एक्सपर्ट होने चाहिए इस फील्ड में, और तभी जो है एक प्रॉपर फीडबैक जो है वो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इन अ बिजनेस कैरियर, इन ऑर्डर टू बिल्ड अप योर बिजनेस कैरियर इन द बिजनेस फील्ड, और या कोई हम जैसे पर्सनल लाइफ में भी जब अमूमन जो है कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई ईमेल जब हम किसी अपने पर्पज़ के लिए कर रहे होते तो उसमें ये जो है स्किल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, फीडबैक क्या है? फीडबैक इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड? यू नो, जब ये सेंडर कन्वे करता है मैसेज, लेटर ऑन इट इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। अब डिकोडिंग हो गई। नाउ व्हाट इज फीडबैक? नाउ सी, इट permits the sender to analyze the efficacy of the message. It helps the sender in confirming the correct interpretation of the message by the decoder. Feedback may be verbal through words or non-verbal in the form of smile, sigh, or it may take a written form also in the form of memos and reports as well. Now see,
फीडबैक क्या है? आपको पता है जब सेंडर कोई चीज़ जो है सेंड करता है, आइडिया, मैसेज, थॉट, रिसीवर उसको रिसीव करता है। रिसीवर माइट बी अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फीडबैक एक ऐसा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो सेंडर को एक परमिशन देता है कि आप मैसेज की एफिकेसी को एनालाइज करें, उसको इंटरप्रेट करें, उसको जो आपने प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स दें। This is your task and it helps the sender in confirming the correct interpretation of the message by the decoder। और यही सेंडर को जो हेल्प करता है जब आप करेक्ट डिकोडिंग कर रहे हैं तो एक कंफर्मेशन हो जाती है सेंडर को जो मैंने मैसेज भेजा है दैट माइट बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन एज आई वांट। फीडबैक में भी वर्बल फीडबैक जो हमें वर्बल भी मिल सकता है और नॉन वर्बल भी मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्माइल का। या हम कोई जो है जैसे जेस्चर देते हैं, पॉजिटिव जेस्चर, नेगेटिव जेस्चर, तो उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि फीडबैक आपको किस तरह का मिला है। इट मे बी रिटन फॉर्म में भी मिल सकता है। समहाउ वी अप्रिशिएट एफर्ट और give positive feedback, positive response and in a business as well as in personal life कभी कभार हमें कुछ अच्छा फीडबैक नहीं मिल पाता तो हम जो है नेगेटिव रिस्पांस देते हैं। समटाइम वी बिकम ऑप्टिमिस्टिक एंड वी रिसीव नेगेटिव रिस्पांस। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, कस्टमर का कभी पॉजिटिव रिस्पांस होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। हम सेल्स लेटर और सेल प्रमोशन लेटर लिखे जाते हैं तो उसमें कभी कभार जैसे नील रिस्पांस, कभी कभार अच्छा बिजनेस। तो ये जो है बिजनेस फील्ड में ये जो है चलता रहता है। इट मे टेक द फॉर्म ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, रिपोर्ट, ईडीसी। अमूमन जैसे अनाउंसमेंट होती है समटाइम जो रिसीवर होता है रिसीव पॉजिटिव फीडबैक, अच्छी अनाउंसमेंट्स होती हैं उनके फ़ायदे के लिए होती हैं। तो ये सब जो है अमूमन हम उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, इट डिपेंड। तो ये जो प्रॉपर फीडबैक जो होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉपर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमने डिटेल्स में फीडबैक ना सी यहाँ से शुरू से लेके अब तक हमने सेंडर थॉट से हमने स्टार्ट किया ये प्रोसेस। When the sender convey thought, idea, and it is received by the receiver might be one person, a group of a person, and if he receives the idea or thought without any obstruction, without any hindrances, and he is reliable and give good response, positive response, then the process of communication becomes successful. Understand? When the process of communication becomes successful, as you expect, as the sender expect, and you receive good response, that is the proper communication, and that is our main task. That is the goal-oriented communication that you want to convey. तो ये हमारा जो है पूरा प्रोसेस जो है इसमें हम जो डिटेल्स में जो है सक्सेसफुली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हमने ये डिटेल्स में जो है प्रोसेस का क्वेश्चन पढ़ा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके हमने जो है डिटेल्स में जो है एलिमेंट्स, फैक्टर्स पढ़े जिसमें सेंडर थॉट, किस तरीके से मैसेज इनकोडिंग होती है, किस तरीके से मैसेज डिस्कोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, और उसमें बीच में हिंड्रेंसेस आती हैं या ऑब्स्टिकल्स आते हैं या रुकावटें आती हैं। और उसके बाद जब कम्युनिकेशन जब आप डिकोड कर लेते हैं तो उसका फीडबैक क्या देते हैं, दैट इज द प्रॉपर फॉर्म। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फीडबैक, जो अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन का, जो हमारा गोल ओरिएंटेड होता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो जब ये फीडबैक रिसीव करते हैं तो उसके बाद फिर हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाती है। तो उसके लिए लाजमी है सेंडर और रिसीवर का बैकग्राउंड, पास्ट बैकग्राउंड, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीज़ें या स्किल्स होने चाहिए। तो होपफुली ये जो हमारा एलिमेंट और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक है आपने डिटेल्स में आपने पढ़ा और समझ में आ गया होगा।